بزدل اپنی ناکامی دوسروں پہ ڈالتا ہے، بہادر اپنی غلطیاں اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، مانتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس پہ ماتم نہیں کرتا. I didn't know better due to which I couldn't do better. Now I know better, so I will do better. عمیر قریشی نام، تعارف آج تک اپنا ڈھونڈ رہا ہوں. لنکڈ ان پہ بنایا ہوا ایک پروفائل، فیس بک پہ بھی ہے، فالوئنگ وغیرہ بھی ہے. اللہ بخشے میرا ایک دوست تھا، اللہ سے دنیا نصیب کرے، بیچارہ زندہ ہے، جیا کبھی نہیں. جب بیٹھا کہتا تھا زندگی کیا ہے، آج تک اسی سوال میں گم ہے. اور اس کا مقصد ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا تھا، مقصد کو سمجھانا تو تھا نہیں. جب مشکل پیپر آیا، یونیورسٹی کی بات ہے، ساتھ ہی ایک سوال شروع ہوا، زندگی کیا ہے. ایسے لونڈے آپ کو کئی ملیں گے یونیورسٹی میں، مشکل پیپر کے بعد ان کو یاد آتا ہے زندگی کیا ہے. ہمارا ایک پیپر تھا کیلکولس کا، انجینئرنگ میں نے کی، سماجی دباؤ کی وجہ سے دل میرا بالکل نہیں تھا. ایم اے اردو کرنا تھا، معاشرے نے کہا انجینئر بن جاؤ، بن گیا. کیلکولس کا پیپر تھا، شام 5 بجے احساس ہوا، صبح پیپر تھا، 5 بجے احساس ہوا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے روم میٹ کی طرف دیکھا، میں کہا سنا، کہتا بھائی کچھ نہیں ہو سکتا. میں کہا پھر، کہتا سائمہ کی مووی لگی ہے چوڑیاں، کیا پلان ہے. ہم نے کہا کیلکولس. کہتا کیلکولس ری اپیئر میں دیں گے، چوڑیاں نکل گئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم نے کتاب بند کی، ہم نے چوڑیاں دیکھی، کھڑکی تو رش تھا، پچھلا شو بھی ٹوٹا نہیں تھا. ہم اندر چلے گئے، ہم نے اینڈ مووی کا پہلے دیکھا، سٹارٹ بعد میں دیکھا. زندگی میں جو کیا دل سے کیا. لوگوں نے کہا انجینئر بن گئے ہو، بہترین کمائی ہوگی، معاشرے میں ذرا مقام بھی بنے گا. ہم نے کہا انجینئرنگ کی جاب ہی نہیں کریں گے، ہم نے ٹیچنگ شروع کر دی. شاید باغی پنا اندر بہت تھا. زندگی میں یاد پڑتا ہے صرف کلاس 4 میں سیکنڈ آیا تھا. ٹرافی لے کے گھر پہنچا، میں نے والدہ کو کہا والدہ مبارک، آج ہمارے گھر میں ٹرافی آئی، سیکنڈ آیا ہوں. انہوں نے کہا فرسٹ کون آیا؟ میں نے کہا تہمینہ نام کی خاتون تھی، مبارکباد دے کے آیا ہوں. کہتی تھرڈ کون تھا؟ میں نے کہا رومانہ نام کی خاتون تھی، ان کو حوصلہ دے کے آیا ہوں. کہتی لعنت تیرے پہ، عورت سے ہار گیا. میں نے کہا جی آپ کی اب زندگی بھر خواہش رہے گی کہ پوزیشن آ جائے. اور ہوا پھر یہ کہ جب مجھے لگا کہ میری پوزیشن آ جائے گی، میں نے سوال چھوڑ دی. فزکس پڑھائی ہے زندگی کے 22 سال، جانتے سب ہیں، سمجھتا کوئی نہیں ہے. پتہ سب کو ہے، نیوٹن کے 3 لاز ہوتے ہیں، آئنسٹائن ہوتا ہے. جہاں ہم نے ذرا امپریس کرنا ہوتا ہے بمباسٹک ورڈز تھرو کرتے ہیں، کوانٹم مکینکس، ویو پارٹیکل ڈیویلٹی، اسٹرنگ تھیوری، ذرا امپریس. یہ معاشرہ ایک دوسرے کو امپریس کرنے پہ کھڑا ہے. میرا ابا امپریس ہو جائے، میری اماں امپریس ہو جائے، میری بہن امپریس ہو جائے، زندگی ختم ہونے لگتی ہے بیوی امپریس ہو جائے، بچے امپریس ہو جائے. امپریس کرتے 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 آج ہم وہاں پہنچ گئے جہاں پتہ ہی نہیں جانا کہاں تھا. جب میں نے ٹیچنگ میں قدم رکھا، خیال آیا ویسے نہیں پڑھاؤں گا جیسے ہمیں پڑھایا گیا تھا. ہم نے پوچھا اس کا استعمال کہاں؟ اگلوں نے کہا گیٹ لاسٹ. ہم نے کہا ہم نے اتنا کام کیوں کیا؟ کہتے کوئی پتہ نہیں بیٹے، گریڈ، مارکس، ریس ہے، دوڑنا ہے، فرسٹ آنا ہے. ہم نے کہا ہم فرسٹ آئے بغیر کامیاب ہو جائیں گے. سب نے عجیب طریقے سے دیکھا. ہو کیئرس. میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. فزکس میں ہم پڑھاتے ہیں ویو پارٹیکل ڈیویلٹی. بہت سارے لوگ فزکس پڑھتے ہیں میٹرک تک، پھر ایف ایس سی میں بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، اے لیول میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن فزکس سمجھتا کوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں سمجھ آ جائے.
वेव और पार्टिकल दो एनर्जी की फॉर्म्स हैं. द फ्री एनर्जी इज वेव एंड द पैक्ड एनर्जी इज पार्टिकल. फ्री एनर्जी को रेजिस्टेंस मिलेगी तो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगी. किसी ने मुझसे पूछा, उमर साहब कामयाब कैसे होंगे? मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं फिलॉसफी मार दूं. कामयाब ऐसे होंगे, मेरी 50 किताबें, उसमें 10 रूल. जिंदगी की रेसिपी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है. बट एक बात मैं जानता हूं, एटम्स को गौर से देखें, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स सेटल्ड है. लो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट, हाई एनर्जी सेकंड ऑर्बिट, उससे हाई एनर्जी. और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो किसी ऑर्बिट में रह ना सके तो वो बाहर निकल आता है एंड बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन. तो बेटे, अगर तुम लो प्रोफाइल में हो तो अपनी एनर्जी पे गौर करना. कुदरत एक छोटे से थर्ड क्लास इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी के साथ लो प्रोफाइल में नहीं रहने देती. तुम तो इंसान हो. जिस दिन बुज़दिल अपनी नाकामी दूसरों पे डालता है, बहादुर अपनी गलतियां अपने सीने से लगा के रखता है, एक्सेप्ट करता है, मानता है. मुझसे ये गलती हुई, उस पर मातम नहीं करता. आई डिडंट नो बेटर ड्यू टू विच आई कुडंट डू बेटर. नाउ आई नो बेटर, सो आई विल डू बेटर एंड वी मूव ऑन. सो जब टीचिंग स्टार्ट की, बड़ी गलतियां हुई. तो ऊपर वालों ने सिखाया था वो रटे मार के इनको याद कराना है, पास पेपर में से सवाल देने हैं. हमने उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की. एहसास ये हुआ एक टाइम पे आके कि नहीं, अगर आपकी फ्री एनर्जी को रेजिस्टेंस मिल रही है तो आप पैक होते जाएंगे. पैक होते होते पार्टिकल की फॉर्म में आ जाएंगे, पार्टिकल्स कंबाइन होंगे, मास की फॉर्म में आ जाएंगे. बट याद रखना, थे आप फ्री एनर्जी. आपकी असलियत ये थी कि आप कहीं भी जा सकते थे, आपको रेजिस्टेंस मिली और आप पैक होते गए. मेरी कहानी शायद सेल्फ रिकग्निशन की कहानी. मैंने अपने दाएं बाएं के लोगों को पहचान लिया, कोई कमाल नहीं किया. लेकिन जिस दिन मैंने अपने आप को पहचान लिया, मैंने बहुत बड़ा कमाल किया. और यह एहसास मुझे जिंदगी के उन सालों के बाद हुआ जब मैं पै दर पै हादसात से, सदमात से, तकलीफों से गुजरता गया. तब हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ आया. पढ़ाया बड़ी दफा था, समझ बड़ी देर के बाद आया. The only certain thing in the universe is uncertainty. Nothing is certain. कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता. मुझे नहीं पता, मेरे डिग्रियां बड़ी हैं, ऑक्सफोर्ड से लेके हार्वर्ड तक, हर जगह हमने मुंह दिया. लोगों को हम इम्प्रेस भी करते हैं. वो होते हैं ना, आपको कुछ लोग मिल जाते हैं, 10 किन्ना का पढ़े हैं, हम कहते हैं 10 तू हार्वर्ड देखी, असी देखी. तुझे पता बॉस्टन में क्या होता है? वो शो ही मारनी ना, मार लेते हैं. पर रात को जब अपने आप को मुंह देना होता है, उस दिन समझ आती है यार फारिग है. मुझसे मेरे एक दोस्त हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, फ्रीलांसर हैं. उनका सेशन था, उसमें किसी ने कहा कैसे पता चले इल्म आ गया? मैंने कहा जिस दिन इल्म आता है बंदा डर जाता है, खामोश हो जाता है. अगर आपको एहसास हो रहा है कि आपके पास इल्म है तो आप खामोश हैं. जो कम इल्म होता है, जिसके पास इल्म नहीं होता, उसके पास बड़े बड़े स्लोगन होते हैं, मुंह फाड़ के बोलता है, वो महफिल लूट के ले जाता है. जो पढ़ा लिखा होता है वो अपनी कही बात से डर जाता है कि पता नहीं ठीक भी है कि नहीं. सो हमारे दोस्त ने हमारे से सवाल किया था जिंदगी क्या है. हमें भी समझ नहीं आई और अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं. बट एक बात समझ आ गई, सर्टेनिटी नहीं है. तख्लीक हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक है इंसान के लिए. क्रिएशन, किसी आइडिया को क्रिएट करना. आजकल शोर है ना बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप. हर बंदा एंटरप्रेन्योर है, जो या बेरोजगार है या एंटरप्रेन्योर है. बिगर आइडियाज,
बिग थीम्स, बेच दो सब कुछ, OLX पे बेच दो। बिकता नहीं है ऐसे। आपके आइडिया को इतनी रेजिस्टेंस मिलती है, आपके अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं। आप जिस अपने दोस्त के पास जाते हैं ना, बड़ा क्लास का आइडिया आया, बताओ हम क्या करें, जिस दिन वो आइडिया मैच्योर होगा ना, वो दोस्त आपको नजर नहीं आएगा। वो कहीं उसको बेच रहा होगा या वो आपको स्टैब कर चुका होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो लोग यहाँ यंग बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में होता है हम दुनिया मुसख्खर कर देंगे, लेकिन दुनिया को मुसख्खर करने के लिए हिट्स के लिए तैयार रहना पड़ता है। ख्वाबों की कीमत वो जानता है जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया होता है। हमसे एक वक्त का खाना नहीं छूटता, यहाँ बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जिनके साथ आपने सालों गुजारे होंगे ना, अगर वो आइडिया उनको पसंद ना आया तो आपको छोड़ जाएंगे। सो डिपेंड्स आपकी कितनी स्ट्रेंग्थ्स अटैच्ड हैं। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा कि अपना अगर ख्वाब देख लिया तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करना शुरू कर देगी कि आप अपने ख्वाब के ऊपर पक्के हैं या आप ख्वाब के ऊपर पक्के नहीं हैं। अगर हैं तो फिर चाहे सारी सोसाइटी एक तरफ हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने टीचिंग करियर में ये देखा, जिस दिन मैंने फैसला किया मैं वो पढ़ाऊँगा जो मेरा दिल चाहेगा और दिल से पढ़ाऊँगा। गुड टीचर्स यहाँ पे भी खातून आई, उन्होंने कहा टीचर जो है वो बड़ा उसके बारे में बड़ी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके बारे में। मुझे किसी ने ये कहा था, और बड़ा फेमस कोट भी है, गुड टीचर्स, बेस्ट टीचर्स डोंट टीच फ्रॉम द बुक, दे टीच फ्रॉम द हार्ट। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट एनीथिंग ब्यूटीफुल। बट मसला है वो मैस्लो में, मैस्लो ट्रायंगल में वो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद एक अदद खातून, फिर लव एंड अफेक्शन, फैमिली, फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, हम पकड़ के उस ट्रायंगल को नीचे से खींच देते हैं, उसकी विड्थ बढ़ जाती है। अब वो जब तक नीचे वाला पोर्शन फिल नहीं होगा हम ऊपर जा ही नहीं सकते। इंसान की कामयाबी उसमें है कि वो नीचे से ऊपर जल्दी ट्रैवल कर सके, ताकि वो सेल्फ रिकग्निशन पे जा सके, क्रिएटिविटी की तरफ जा सके। सो जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स, जिंदगी इतनी अनसर्टन है, मैं मोटिवेशन तो कर ही नहीं सकता। जिंदगी भर मैंने डीमोटिवेट किया लोगों को, इसीलिए मेरा कहीं भी नाम मोटिवेशनल स्पीकर्स में नहीं आता। बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी था ठीक था। सो वेव की फॉर्म में आप थे, पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हुए, वापस वेव की फॉर्म में जाएंगे। तो अगर लगे कि आपका शेल टूट नहीं रहा, कीप एडिंग एनर्जीज, कीप एडिंग एनर्जीज। हर हिट एक नई एनर्जी देगी। डाउन हो के, सो के, रो के, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके उनको अपनी कहानी सुनाने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी ने कहा था अपना दर्द किसी को ना बयान करना, दुनिया या हंसेगी या हमदर्दी करेगी, तुम्हें दोनों नहीं चाहिए। तुम्हें तो चाहिए सिर्फ अपने उस ख्वाब को फॉलो करना। तो उसके अंदर हिट्स आती रहेंगी, उसके अंदर कहते पंजाबी में सट्टें लगती रहेंगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपके ख्वाब को आंखें मिल जाएंगी, जब आपकी ख्वाब को नज़र मिल जाएगी। तो किसी ने मुझसे कहा तुम अपने ख्वाब की आंखों के बारे में कुछ कहना चाहो? हमने कहा जी बिल्कुल। कहते हैं अर्ज़ करें। हमने कहा इरशाद करने लगे, अर्ज़ करें। इरशाद ये है कि मेरे ख्वाब की शराब आंखें, शबाब आंखें, जिंदगी का निसाब आंखें, कहा नहीं था ए दिल संभल जा, करेंगी खाना खराब आंखें। कहा जो मक्तल सजेगा किससे, कहा जो मक्तल सजेगा किससे, जवाब आया जनाब आंखें। थैंक यू वेरी मच।